Hello friends, I am Gaurav and I am back with another travel vlog. This time it is a road trip to Rajasthan which we took on the last week of December 2020. We started our journey on 25th of December. We started at 7 o'clock in the morning from Noida and around 2:30 we reached Bikaner. Though it's supposed to take 8.5 hours, but due to holiday today and the roads were too good, we came here at around 7 hours 30 minutes. The drive was very good. The roads were in a very good condition. हम पहुँचे रेस्टा बीकानेर। बहुत अच्छा होटल है, नया होटल है। जो स्टाफ यहाँ का है काफ़ी कॉर्डियल है। So today is day 2 of our journey. आज सुबह हम उठे, हमने अभी ब्रेकफास्ट किया यहाँ पे और अब हम जाने वाले हैं बीकानेर में करनी देवी टेम्पल, जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी लोग उनको यहाँ पे मानते हैं। We are now entering the Karni Mata temple and the temple is famous for its rats. करणी माता के सबसे छोटे पुत्र थे लाखन जी। वो पोलायत की तालाब में नहाने गए तो डूबने से उनकी मृत्यु हो गई थी। तो करणी माता अपने पुत्र को लेने के लिए यमराज के पास गई थी। तब यमराज ने कह दिया, भाई इसको तो आप ले जा रहे हैं और भी आपके वंशज मेरे पास आएंगे तो उनका क्या होगा। तो माता ने कहा था, मेरे जो वंशज आपके पास नहीं आएंगे। अब इनके वंशज यहाँ 5000 लोग इस गाँव के अंदर है। हम भी इसी परिवार से बिलोंग करते हैं। जब भी हमारी मृत्यु होती है इस काबे के रूप में जन्मते हैं। यहाँ चूहों को काबा कहते हैं। काबे की जब डेथ होती है हम इंसान के रूप में जन्म लेते हैं। Being an atheist, I may not agree to the stories that I hear, but there are a few things inside the temple which defies logic. With so much food in abundance given by all the devotees, the number or the size of the rats seems to be in control, which seems to be a bit surprising. After spending some time in Karni Devi temple, we headed for Junagarh fort. Juna in local language means old, and the fort is called Old Fort or Junagarh Fort. The fort was built in 14th century, and from then till the Second World War there have been some of the other constructions. I like the architecture of the fort. 1669 का अनूप महल, दीवान खास 80 किलो सोना लगा है। The fort also have a museum where somebody can take a glimpse of the lifestyle of the then kings and queens. Among the items in display, there is also a plane which is from World War I, gifted by the Britishers, and a point of interest for a lot of tourists. We thought of ending our day by visiting the National Institute of Camel Research, which is another must-do activity for the tourists in Bikaner. पता तो कुछ चल नहीं रहा है कि ये कैमल का है, बट स्वाद अच्छा है, बहुत टेस्टी है। थोड़ी देर बाद में आपको इसका टेस्ट अलग आएगा। अच्छा। As it was getting dark, we couldn't spend much time inside the Camel Research Center, but we got a glimpse of the camels, and interestingly, it was preparing us for the days to come where we would be spending some quality time with the camels in the Khuri desert. गुड मॉर्निंग। आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम निकले हैं बीकानेर से और खुरी के लिए निकलने वाले हैं। खुरी का जो यहाँ से ड्राइव है वो 6 घंटे का ड्राइव है।
We passed Pokhran, a small village that is popular for the 1998 nuclear bomb test. Before entering the Jaisalmer city, we turned left to a small road and drove for another 50 km, which took us to the village of Khuri. तो हम यहाँ पहुँचे बीकानेर से 3 बजे पहुँचे बादल जी के घर पे। बादल जी के घर हम पहुँच के उनसे मिले और मिलके हमने उनसे जो बातें की बहुत ही अच्छा लगा। बादल जी 25 सालों से लोनली प्लैनेट में उनका नाम है और कुछ एक मैगजीन्स में है और लोग उन्हें काफ़ी पसंद करते हैं, स्पेशली जो फॉरेनर्स बाहर के लोग आते हैं, दे आर फॉन्ड ऑफ हिम। तो बादल सिंह जी तो बहुत अमेजिंग पर्सन है। वो एक ऐसे ट्रेजर हैं जिनको मैं नहीं चाहता ज़्यादा लोग जाने, ना वो थोड़ा उनमें कुछ हो जाएगा, बहुत कमर्शलाइज हो जाएंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत ओरिजिनल है, उनके पास हज़ारों उनके पास लोग आएंगे तो भी वो ऐसे ही रहेंगे। और बहुत ही मज़ा आया उनके घर में, उनसे मिले, बादल जी से बात की, उनके बच्चों से मिले, उनकी वाइफ से मिले। उसके बाद उन्होंने हमें गर्मा गर्म चाय पिलाई और चाय पीने के बाद फिर हम तैयार हुए। खुरी जो ड्यून में हम आने वाले थे वहाँ के लिए हमने बैकपैक किया और At around 4 p.m. we started our camel safari from Khuri village for the sand dune, where we would be spending a night in the wild. After an hour of camel ride, everybody is excited to see the dunes where we would be spending our night. The first glimpse of sand was mesmerizing, for sometimes we didn't know what to do. Some started clicking photos, while some started running in the vast ocean of sand lying in front of us. The sand below our feet started reducing its temperature drastically as the sun started going down. With the sunset, the temperature went down so much that we had to put in a few layers of woolens. आग लगा दी गई है। 100 मीटर पे हमारे टेंट लगे हुए हैं। रात के घुप अंधेरे में आजू बाजू 10-15 किलोमीटर आगे पीछे कोई नहीं है। खाना खाएंगे एंड वील रिट्रीट टू आवर टेंट्स। कल अगर बचे तो बाकी हम आपको बाकी का ब्यौरा कल देंगे। और एक स्वीटी बेचारी है जिसको डर लग रहा है कि कोई लोमड़ी ना खा जाए। आलू गोभी का सब्जी, दाल, चावल, रोटी, वेरी बेसिक स्टफ बट हेवनली टू टेस्ट। After dinner, we retrieved into our tent, which we carried on the camel back from the Khuri village. Today is day 4. यहाँ पे मिलियंस ऑफ स्टार दिखे, लाइक मिलियंस। सैटेलाइट तो इतनी दिख गई कि मैं बोर हो गया सैटेलाइट। फिर मैंने इतने सारे वो देख लिए टूटते हुए तारे,
कभी कुछ बता नहीं सकता मैं। ये हमारे टेंट के अंदर है। ये हमारे चाय है जो हमें यहाँ मिली है। और ये हमारा टेंट है। कल रात तक तो सब कुछ ठीक था, रात को सोने के बाद तो भाई मज़े ही आ गए। टेंट में एकदम खाली रेगिस्तान में, आगे पीछे कुछ नहीं है। 4 हम बंदे एक के बाद एक फिट हो गए इस छोटे से टेंट में। अच्छा, मतलब इट वाज अ वेरी रस्टिक एक्सपीरियंस। मतलब इस तरह के एक्सपीरियंस, जैसे हम लोग घूमने फिरने जाते हैं तो हमेशा कंफर्ट की तरफ घूमते हैं, बट यू नो ये वाला एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी एक्सपीरियंस है। और देखिए ये सुबह सुबह आज का ये देखिए स्वीट पराठा सुबह सुबह एकदम रस्टिक, यही सब लोकल भैया बना रहे हैं और एकदम गरमा गरम परोस रहे हैं। तो अभी ना फिलहाल मैं इस पे कंसंट्रेट करूंगी और कुछ देर में फिर आपको बाकी एक्सपीरियंस बताऊँ कि भाई इन्होंने हमें एक चांस दिया, कैसे इनकी जो कठिन ज़िंदगी है उसको हम एक्सपीरियंस कर पाएँ। कितना ग्रैटिट्यूड है इनके प्रति, इन्होंने हमारा खाना बना रहे हैं, हम कैमल पे लेके आए हैं। कितना वो है, आयरनी है कि बेचारे गरीब लाइफ होती है तो अच्छे से जी रहे हैं और बड़ा ही ग्रेटफुल लगा। We plan to stay here for almost 2 nights, but I think 1 day is good enough for us to experience the entire piece. Now we're going towards the village. So there's nothing as such, which I didn't like. It was perfectly fine. But yes, if I stretch it for too long, 2-3 days, then I may not, start liking it. Our camels that were let loose in the night to graze in the wilderness are now returning. ऊपर फिर से बैठ गए। अब हम नेक्स्ट विलेज पे जाने वाले हैं, पर ऊँट के ऊपर उठने के बाद जो व्यू सैंड ड्यून की आ रही है वो बहुत ही अल्टीमेट है। हम लास्ट 20-25 मिनट के कैमल राइड के बाद पहुँचे हैं दूसरे सैंड ड्यून में। कम से कम 8-9 हिरणों की झुंड अभी भी दिख रहे हैं। ये देखिए वो भाग रहे झाड़ियों के बीच से भागते हुए। हमें बिहारों में हिरन देख के बहुत ही मज़ा आ रहा है, काफ़ी एक्साइटेड है। कुछ डेजर्ट रैट्स मिले। करीबन 1 घंटा ऊँट के सवारी करके हम पहुँच रहे एक ठानी मतलब गांव में, जहाँ पे 4-5 फैमिली रहती है जो मवेशियाँ चराती है। और वहाँ पे हमें मिलेगा कुआं जहाँ से हम पानी भरेंगे और उस पानी से हमारा लंच होगा। ये भर रहे गांव वाले भी यहीं से लेते हैं और सिंचाई भी करते हैं। कुछ देर ऊँट पे बैठने से क्या होता है, पहले आप अपने पैर अपने हाथ सब स्टिफ रखते हो कि कहीं आप गिर ना जाओ, बट थोड़ी देर के बाद आप रिलैक्स हो जाते हो। पैर भी ऊँट के मोशन के साथ हिलाते हो और अपनी बॉडी भी, और आपको फिर थकावट कम महसूस होती है और आप एंजॉय करने लगते हो ऊँट की सफारी, और फिर आपको गिरने से भी डर नहीं लगता। सो हम उस फेज़ पे है जब हमें ऊँट की सफारी मज़े आने लगे हैं। We are now reaching the third dune of the day where we will be preparing our lunch. After 2 hours of camel safari, we badly needed our leg to stretch. ये है देवी सिंह जी जो कि यहाँ खाना बना रहे हैं। देवी सिंह जी बताओ आज का मेनू में क्या है? आज मिक्स वेजिटेबल होगा, दाल राइस और चपाती। वाह। और ये है इनका चावल बन रहे हैं। ये चावल बन रहे हैं। It's 1 p.m. now and the temperature is around 22 degrees centigrade, a perfect setting for sunbath while the lunch is getting prepared.
After spending a day with the camels, we have started developing a friendship with them. उसका रेस्ट किया हम लोग बहुत दिनों धूप से किया बैठ के आज बहुत दिनों के बाद। अब हमारा कैमल सफारी का ये लास्ट पड़ाव हम शुरू कर रहे हैं। The last stop of the day was in the sand dune where we found a lot of tourists. After witnessing the second desert sunset, we resumed our journey back. हमारी पूरी कारवां वापस जा रही है खुरी विलेज की तरफ, जहाँ पे हम आज रुकेंगे बादल सिंह जी के यहाँ, और कल सुबह हम निकलेंगे उदयपुर के लिए। यहाँ का शमशान घाट है जो हमें दिखाई दे रहा है। कैमल सफारी के बाद अब हम बादल सिंह जी के घर पे हैं, और बादल सिंह ने अल्टीमेट मटन बनाया है, इतना अच्छा और स्वाद से भरपूर। अच्छा, फ्रेश और एकदम गरम गरम। the day could not have been complete without hearing Badal Singh ji's life story. और मैंने मजदूरी की है दूसरे गेस्ट हाउस में। अच्छा, तो मैं 2 ऊँट रखता था, अभी मेरे से संभलता नहीं, क्योंकि बच्चे पढ़ते संभलता नहीं। ऊँट और गाय बकरी प्लस गेस्ट यहाँ रुकते हैं, सब पूरा संभलता नहीं। Today is day 5. ये हम लास्ट फोटोग्राफ खींचने के बाद हम बादल हाउस से अब निकलने वाले हैं। The next part of our road trip will be in part 2 of my vlog, where we will visit Udaipur and Ranthambore before returning to Delhi. In Ranthambore, we witnessed a deer hunt just a few meters from us. The vlog will be uploaded shortly, so if you do not want to miss it, please subscribe my channel. Thanks.